All right, so we'll move ahead with Newton's laws of motion. कल जो मैंने सिखाया तो उसके आगे का पार्ट अभी लेना है हमें. And if you remember, yesterday we spoke about acceleration on smooth surface. तो आज हमें स्टार्ट करना है with motion of blocks in contact. Motion of blocks in contact. By the way, since there is no electricity, we are connected on a small screen. आप आगे आके बैठ सकते हो. So what we want to do here is, I'll just roughly tell you कि situation क्या है, हमें क्या find करना है. So we have two blocks in contact. Let us say ये एक block है with mass m1, ये दूसरा block है with mass m2, and let's say A block and B block, mass m1, mass m2. Okay, and we are applying a force onto this. हमने एक फोर्स अप्लाई किया इस पे कैपिटल F. हमें ये फाइंड करना है व्हाट इज एक्सेलरेशन इन दिस केस. दूसरा, जब आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो मास m1 पे एंड मास m1 इज इन कांटेक्ट विद मास m2, तो मास m2 की वजह से भी एक फोर्स लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? करेक्ट. तो कैपिटल F force was applied on block A, but block A is in contact with block B, so block B will resist the motion of block A, right? तो when you draw free body diagram, तो हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके सॉल्व करना होता है. सो इफ आई ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक M1, मतलब ब्लॉक A, so block A has mass m1. The force on this block is capital F here, and there's another force, small f, will be acting due to block B. तो ये स्मॉल f फोर्स क्यों आया? बिकॉज ऑफ ब्लॉक B. करेक्ट, राइट. तो ओवरऑल जो फोर्स है कैपिटल F, वो ओवरऑल इस ब्लॉक को कहाँ मूव करेगा? टुवर्ड्स राइट. करेक्ट. तो व्हाट इज द नेट फोर्स? m1a. क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम किसके ड्रॉ कर रहा हूँ? A ब्लॉक की. तो मैं मास क्या लूंगा? m1 लिखूंगा और into A will give me force, net force. So what will be equation for this equation? Capital F minus small f is equals to m1a. Correct. What will be acceleration equation? F by m1 नहीं. नॉर्मली जब आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो the force, which force? External force that you are applying divided by total mass. तो ये होता है m1 plus m2. This is acceleration, net acceleration, right? तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक m1. But if you look at block m2, if you look at block m2, what will happen is, अगर आप ब्लॉक m2 की बात करोगे, can you tell me what are the forces on this block m2? Small f. In which direction? In which direction? देखो हो क्या रहा है. Overall you need to understand one thing. दो ब्लॉक्स थे A और B इन कॉन्टैक्ट. हमने A को पुश किया लेकिन B उसको रेजिस्ट करेगा, मतलब
capital F was the external force but small f is opposition due to second block. सेकेंड ब्लॉक का एक्शन हो गया किस पे, पहले पे, तो रिएक्शन होगा, गुड, तो रिएक्शन होगा मतलब फॉर M2 यू विल हैव अ रिएक्शन फोर्स व्हिच इज स्मॉल f. आता मला अशी डिस्टर्ब करशील का तू, ओवरऑल दिस लेक्चर चालू आहे का माझं, in the right direction from left to right and that is निघून जातो given by परत M2A. आण पटकन. Good. What will be the equation that you will be writing in this case? Small f is equal to M2A. That's it. Correct. And what will be in general small f is equal to M2 और A क्या है आपका capital F upon M1 plus M2. So this is how you solve, right? तो आज हम लोग आज का क्लास ऐसा प्लान्ड है that I will tell you case 1, ये case 1 है where there are two blocks in contact and we are pushing first block and what you are supposed to do is right now आपको ये करना होगा what happens if I apply a force on block M2. अगर मैंने ऐसा फोर्स अप्लाई कर दिया कैपिटल F on block M2, so in this case you have to write down those equations and I will verify if you have done it correctly or not. Sir, Yes. So in this case you will have capital F minus small f equal to M2A, small f equal to M1A and acceleration will always remain net force मतलब applied force upon total mass and small f that is M1 into A and A is already capital F upon M1 plus M2. The idea is very simple और ऐसे एग्जाम्पल एक्चुअली बहुत सिंपल है बट समटाइम्स पीपल मेस अप इन थिंग्स. तो क्या करना होता है, हमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए. तो अब जब आप सेकेंड ब्लॉक पे मतलब आप बी ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो विथ मास M2, तो सबसे पहला काम आपका ये है दैट ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2. तो यू आर पुशिंग block B with force capital F, but block B is in contact with block A, तो block A उसको रजिस्ट करेगा तो इसलिए ये फोर्स स्मॉल f हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में शो करते हैं, राइट. ओवरऑल मोशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ओवरऑल इट इज M2A. तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल टू M2A, राइट. गुड. तो अब बार बार हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें. Do we have that much of time? No. Can you think of any trick to make these equations capital F minus small f equal to M1A, capital F minus small f equal to M2A? How do you remember? How do you remember? small f is for block which is in contact. Exactly. Not pushing. Exactly. तो the thing is जब आप M1 ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, करेक्ट, तो हमको क्या देखना होता है हमेशा, दिस इज नेट फोर्स, राइट. कैपिटल F वाज अप्लाइड फोर्स क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक सेकंड के कांटेक्ट में था तो सेकंड ने रेजिस्ट किया मतलब अपोज किया, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, नेट क्या हुआ, कैपिटल F माइनस. किस पे फोर्स लगाया था हमने, M1A है क्या, M1 है वहां पे, राइट. सेकंड केस में क्या था, सेकंड केस में कहां फोर्स लगाया आपने, M2 पे, तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल टू M2A. और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास. तो ये आपको पता होना चाहिए ऑलवेज,
right? So it is F net upon mass basically. That's right. So this is how you solve such things, this is how you remember such things, right? So doing theory means doing numericals here in this case. तो हम लोग बहुत डिटेल में जाने वाले हैं इसका. Now what happens if I increase one more block? तो हमने यहाँ पे this is one, then second block, and I have a third block मान लेते हैं, right? तो we are applying force on block number first, मतलब block A मान लेते हैं इसको, block A, B, C, mass M1, M2, M3, right? Can you tell me what is acceleration overall in this case? Applied force upon M1 plus M2 plus M3. Applied force, not net force. क्यों? क्योंकि ओवरऑल तीनों ब्लॉक्स मूव होने वाले हैं, इसलिए अप्लाइड फोर्स. नेट फोर्स कहाँ लिखना है वो मैं बताऊंगा, वो पुली के केस में होता है, राइट? गुड. हाउ डू वी मेक इक्वेशंस? वापस से वही, पहला ब्लॉक लो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो. सो आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, ये तो कैपिटल एफ फोर्स हो गया हमारे पास, उसको अपोज करने वाला एक और फोर्स होगा. सो व्हाट वी हैव इज कैपिटल एफ and this is, let us say, F1, this is M1. Overall motion is in this direction. Equation क्या बनेगा पहले का? capital F minus F1 is equals to M1A. M1A. Very good, correct, right. अभी इसका और ट्रिक है इसलिए बता रहा हूं मैं. ये तो पहला ब्लॉक हो गया, ओके. What about second block? F2 minus F1. F2 कहाँ से आया? पहले तो ये बताओ, टेल मी वन थिंग, दिस इज विच फोर्स जो अभी ड्रॉ किया मैंने ये एरो? सेकंड मास ने थर्ड मास पे. हाँ, लेकिन तीन ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है. हमने पहले को पुश किया, पहले के साथ दूसरा कांटेक्ट में था, F1 इज अपोजिंग, वो एक्शन था, उसका रिएक्शन होगा, मतलब दिस इज F1 रिएक्शन, करेक्ट? ऐसा ही होगा वो. देन दिस विल बी अनदर फोर्स, क्योंकि अभी थर्ड ऑब्जेक्ट भी अपोज करेगा, तो F2 मान लो, करेक्ट, राइट? एंड ओवरऑल मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, तो M2A, जैसे ये M1A लिखा वहां पे M2A लिखा. व्हाट इज इक्वेशन? F1 minus F2 is equal to M2A, correct? Then can you find out equation for F2 here? How do you write down F2 force? How do you write down F2 force? I will repeat overall, yes. How do you find out F2 force? That's why we are taking this in detail, क्योंकि मुझे आपसे ट्रिक्स बनवा के लेने हैं. Can you please थोड़ा आगे आगे, दिख नहीं रहा होगा, I don't know if you can see from that far. दिख रहा है क्लियर? M2 पे जो फोर्स लग रहा है, F2 कैसे फाइंड करोगे? या तो लेट मी गो वन स्टेप बिहाइंड. कैन यू टेल मी हाउ डू यू फाइंड आउट F1? How do you find out F1? How do you find out F1 force in terms of M1, M2, M3 and capital F? I want you to understand in simple way what is happening. What is F1? What is F1? Applied force to the. हाँ ठीक है, करेक्ट. हमने पहले ब्लॉक पे, कौन से ब्लॉक पे? ए ब्लॉक पे कैपिटल एफ फोर्स लगाया. ए ब्लॉक के बाद क्या था? बी, और उसके बाद क्या था? सी. मतलब उसके बाद दो ब्लॉक थे, दो, करेक्ट? तो F1 फोर्स
किसकी वजह से है? दो ब्लॉक की वजह से है। दो ना, कौन कौन से दो? B एंड C, मतलब मास क्या? M2 एंड M3, राइट? व्हाट इज जनरल इक्वेशन फॉर फोर्स? मास इनटू, हाँ, तो ये F1 फोर्स का सोर्स क्या है? M2 मास है और M3 मास है, बराबर है ना, इनटू एक्सेलरेशन, है ना? ए फाइंड किया क्या आपने? ऑलरेडी किया है, तो क्या आएगा? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. This is what is required to crack an exam like JEE or NEET. You don't have time to go and solve everything. Derive करो, लॉजिकली सोचो, मेरे पास पहला ब्लॉक था, दूसरा था, तीसरा था, मैंने पहले को पुश किया, तो दूसरा और तीसरा अपोज करेगा, तो F1 किसकी वजह से आया? दूसरे और तीसरे की वजह से आया। तो जनरल फॉर्म क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, बट मास क्या है? M2 प्लस M3, तो ऐसा आपको मिलेगा इक्वेशन, करेक्ट, राइट? तो दिस थिंग यू शुड अंडरस्टैंड वेरी वेल, डिराइव तो हो सकता है, डजंट मैटर। देन we have to see what is happening with M3. M3 के साथ क्या होगा? now you should tell me. ये है आपका ब्लॉक M3, let us say, so let's say this is block M3, block C with mass M3. What are the forces on this M3? last पे कौन सा फोर्स होगा? F2. in which direction? right, मतलब it will be like this, correct? okay, good. So this is which force? F2. So this F2 will bring in acceleration of, so F2 will be equal to M3A, and A you already have, F upon M1 plus M2 plus M3, correct? So this is how you should be finding out equations. बहुत सिंपल केस है। Now without writing, without putting down anything, you have to tell me orally equations. I don't want any of you to look into your books to write anything in your books. And those who are connected online, you may also answer via chat. Now we have this situation, और हम लोग यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, and this is mass M3, mass M2, mass M1, and this is force capital F. First thing is, जिसको मैंने नाम दिया है, मैं उसको बोलता हूँ एंड पॉइंट मेथड। एंड पॉइंट मेथड मतलब बीच के मास ब्लॉक पे कभी नहीं जाना, पहले सबसे पहले जहां फोर्स लग रहा है वो एंड पे ही होता है बेसिकली, तो वहां से स्टार्ट करो, मतलब यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम M3, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम M3। अभी पहले M3 का फ्री बॉडी डायग्राम देख लेंगे। यहाँ पे ये एक अप्लाइड फोर्स है F, और M1 और M2 की वजह से रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टिव फोर्स होगा, लेट अस से F1, राइट? एक्सेलरेशन तो विल बी सेम, A will be capital F upon M1 plus M2 plus M3. I want to know what is F1 here. M1 plus M2 F divided by M1, M2, M3. Correct. क्योंकि यहाँ पे F1 is resistance due to M1 and M2 masses into acceleration, and acceleration you already have mentioned there, तो ये आ जाएगा आपका F upon M1 plus M2 plus M3. हो रहा है ओरली सब? वेरी गुड। तो दिस इज व्हाट वी वांट, गुड, राइट? Kashish, did you understand this case for M3 और M2 में अभी बता रहा हूं, but the force is in the reverse direction now. Great. Then if you are talking about M2, तो M2 का केस क्या है अब? What are the forces on M2? F2 और F1। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था, ये F1 फोर्स था, एक्शन किस पे? एक्शन M3 पे,
तो रिएक्शन किस पे होगा, m2 पे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में. सो दिस इज F1. करेक्ट है, राइट है, श्योर, ओके. एंड देन यू हैव अनदर फोर्स F2, क्योंकि मास m1 भी अभी रजिस्ट करेगा, राइट. तो एक्शन रिएक्शन पेयर समझना जरूरी है. कैपिटल F था एक्सटर्नल फोर्स, किस पे, m3 पे. m1 और m2 ने रजिस्ट किया, मतलब F1 आ गया. अब इस एक्शन का रिएक्शन होगा, और रिएक्शन किस पे होगा, m2 पे लग रहा है, राइट. बट m2 के बाद वापस m1 है, तो m1 भी रजिस्ट करेगा. तो दिस इज द आइडिया हियर, राइट. एंड ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो m2a. व्हाट इज द इक्वेशन हियर, F2 या F1, F1 minus F2 equal to m2a, right, correct. Can you tell me what is force F2 by the way? F2 फोर्स किसकी वजह से आया था, कौन से ब्लॉक में रेजिस्ट किया था, m1 ने. तो m1 इंटू एक्सेलरेशन है ना, करेक्ट. तो m1 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. अब अगर आप यही नोट उठा के देखोगे, कोई भी बुक्स, कोई भी एररलेस होगा, सिंगेज होगा, तो यही इक्वेशन मिलेगा आपको, करेक्ट, राइट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय लॉजिक. इज इट क्लियर नाउ, m2 पे फोर्सेस कहां से आए, कशिश, इज इट क्लियर, m2 के फोर्सेस, m2 के इक्वेशंस कैसे आए. ओके, ग्रेट. सो नेक्स्ट थिंग, अब we will look at motion of blocks connected by massless string. Motion of blocks, पहले blocks in contact था, अब हमने blocks को रस्सी से बांध दिया. So motion of blocks connected by massless strings, क्योंकि there can be more than 2 blocks, right. So let us start with a simple case, and that simple case is 2 blocks, block A, block B, not in contact but connected via a string, right. और हम लोग इसको यहां से पुल कर रहे हैं, तो we are basically pulling it from this side with a force which is capital F. Let us say this is m1 and let us say this is m2, block A, block B. जो मेथड मैंने आपको बताया था, एंड पॉइंट मेथड, वो यहाँ पे ज्यादा एप्लीकेबल है. कैसे, सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स. कितने स्ट्रिंग है यहाँ पे, 2, लेकिन 2 में से एक एक्सटर्नल फोर्स के काम में आ रही है. 2 ब्लॉक्स को कनेक्ट कर 2 ही ब्लॉक्स है ना, तो एक स्ट्रिंग, राइट. क्योंकि जब स्ट्रिंग की बात होगी तो टेंशन की बात होगी. एंड यू शुड नो, if you have only one string, तो टेंशन इज T. अब आप डायरेक्शन ऐसा दिखा सकते हो, है ना, डिपेंड्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉक M1 और M2. अगर आप M1 की बात कर रहे हो, तो दिस इज अ फोर्स ऑफ टेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. तो वो हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब देख लेंगे. तो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, क्योंकि मैं 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक भी लगा सकता हूँ. तो इसका एक बेसिक ट्रिक है, वो है हमेशा फ्री एंड से चालू करो, मतलब स्टार्ट विद ब्लॉक M1. आर यू कनेक्टिंग दिस. लास्ट केस में क्या किया था हमने, जिस पे फोर्स, हाँ, जिस पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे वहां से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, उल्टा कर रहे हैं, है ना. तो you have to do it this way here. Well, acceleration will always be same. Acceleration will be what, force upon
total mass हमेशा. And what is the direction of acceleration is always this. Right. So you have to start solving from M1. So you have to draw free body diagram of M1. This is M1. कौन कौन से फोर्स है? एक ही तो फोर्स है, टेंशन T. Right. So what will be equation here? T is equal to M1. Yes, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे है तो T इज इक्वल टू M1 A. A आपके पास ऑलरेडी है तो M1 F अपॉन M1 प्लस M2. Right. What about second block? M2. What are the forces? Applied force F and tension now in the opposite direction. Right. Or overall acceleration is here. What will be equation? F minus T equal to M2A. Correct. So फिर what is our task here? Force कितना अप्लाई किया तो पता ही होता है ना. What is our task? To find out tension in the string. How do you find out tension in the string? आपने already कर दिया है find. Very good. Then do we need anything else? No. इतना ही चाहिए होता है हमको इस केस में. So this is how you are going to solve such questions. बहुत सिंपल है. दो ब्लॉक है तो सिंपल है. अभी ब्लॉक बढ़ाऊंगा तो समझेगा and then we will use tricks. So what we will do is एक, दो and तीन, and let me connect by strings these two, and then just for the sake of clarity मैं इसको एक अलग कलर दे रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स को. सो दिस इज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स F. राइट. तो सिंपल सा केस है. दिस इज F, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स. दिस इज मास M3, M2, M1. कहां से स्टार्ट करोगे? M1 से स्टार्ट करेंगे. और बाय द वे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट M1, ये M1 हो गया. M1, can you tell me forces? Force, which is the force acting? Tension. So can I just write down T here? T1, right? Why? Because there are two strings now. So T1. इसका इक्वेशन क्या बनेगा? T1 equals to M1 A बनेगा. Very good. Right. What about second block M2? T2 minus T1 equals to M2A. तो ये T2 फोर्स हो गया, ये T1 फोर्स हो गया. राइट. तो ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज दिस. दिस इज M2, दिस इज T2, दिस इज T1. तो आप लिखोगे T2 minus T1 equal to M2A. राइट. तो यहां से तो आपको मिल जाएगा ना ये M1 एक्सेलेरेशन इज हाउ मच? F अपॉन plus M2 plus M3. Right. By the way, what is our task in such cases? T1, T2. Right. तो अभी हम लोग क्या करेंगे फिर? अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? How to solve this question? T2 is equal to M2A minus T1, मतलब माइनस के जगह पे प्लस, और M2A प्लस T1 is M1A. तो M1 plus M2 into A is F upon M1 plus M2 plus M3. Correct? Right. Now I'll tell you a trick. टेंशन T2 कहाँ था? यहाँ था क्या टेंशन T2? बराबर ना? ओके. तो
मैं क्या करता हूं ना, मैं देख लेता हूं कि सेकेंड स्ट्रिंग के पीछे कितना मास है, कितना मास है m1 प्लस m2, राइट। तो t2 क्या आएगा, फोर्स ही है ना, t2 फोर्स है ना, फोर्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है m इंटू ए। तो t2 क्या आएगा m1 प्लस m2 इंटू ए, और ए तो पता ही है, तो m1 प्लस m2 f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, क्लियर, राइट। तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड, राइट, है ना। हाँ, तो फिर अभी मैं एक एक करके पूछूंगा और मुझे आप सबसे एक एक आंसर एक्सपेक्टेड है। तो लेट मी ड्रॉ फ्यू थिंग्स हियर, 1 2 3 4 एंड ऑनलाइन ऑल्सो, दोज आर कनेक्टेड ऑनलाइन, उनको भी आंसर करना है। सो ये होगी पहली रस्सी, सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, मैं बोलते भी जा रहा हूं, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग, applied force, applied force is here, right. So this is capital F, m1 m2 m3 m4 m5 m6, how many of you are there, 4, और 3 ऑनलाइन है। तो ओके, एक एक करके आई विल आस्क वन बाय वन। m7 f, let me see, so I will start with Tanaya. What is complete equation of T1? यहाँ पे होगा T1, so T1 is equal to m1 into a. Sahil already answered, ठीक है। anyways, तो online just put equations, यहाँ पे what will be T2, m1 plus m2 into a. m1 plus m2 into a will be f upon total mass, right, correct. What will be, मैं 1 2 स्ट्रिंग नंबर ले देता हूँ, 3 4 5 6, what will be T5, m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5 plus f upon m. गुड। तो m1 से लेके तो m5 तक ऐड करोगे और f बाय टोटल मास करोगे। what will be T4, m1 plus m2 plus m3 plus m4 4, into f upon f. वेरी गुड। मैं ये कुछ इंटेंशन से बता रहा हूं बिकॉज आई हैव सम intentions to tell you over here. What will be T3, m2 plus m1 m1 plus m2 plus m3 f by capital. capital, right. Do you notice something here, do you notice there is something which you should see, यहाँ पे 2 तो ये 2 तक ही गया है ना, यहाँ पे 5 तो ये 5 तक ही आया, if I am talking about 4 then यहाँ पे 4, करेक्ट। तो डायग्राम की भी क्या जरूरत पड़ेगी आप मुझे बताओ। if I say T6 you should say m1 plus m2 up to m6 f by n, right. So this is why it is important for you to work out every single thing, right. अभी ये क्या लिख के रखा है, आई डोंट नो, सॉल्व करके दिया है बुक्स में। तो दिस इज नॉट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, दिस इज नॉट स्टेट बोर्ड प्रिपरेशन, right. So this kind of tricks you must know, okay, right. So we'll move to next section now, and next section, in that we will be talking about
motion of connected block, of course with the help of a string, but over a pulley. राइट तो ये भी बहुत इजी है. यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल ओवर हियर. हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है. नॉट ऑलवेज दे विल शो यू रिजिड सपोर्ट. ओके क्योंकि रिजिड सपोर्ट पे फिर वो एक स्ट्रिंग लगा देते हैं बंद नहीं कर देना मत. नहीं और उस स्ट्रिंग पे दे पुट अ पुली, राइट. और उस पुली पे देन यू हैव this kind of situation, right? Then you may have what you will have a block here and a block here. Okay, then जब पुली को एक स्ट्रिंग से सस्पेंड किया गया है तो फिर उस केस में दो टेंशन T1 और T2 की बात होगी. बहुत बार पुली के ऊपर स्ट्रिंग नहीं दिखाते तो उस केस में यू विल हैव ओनली वन टेंशन, राइट. तो you have to know that this is T2, here you have T1 and here you have T1. Why T1? स्ट्रिंग सेम है. ये है मास M1, ये है मास M2. मोशन कैसा होगा? M1 ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? M2 नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? क्या होने वाला है? M1 ऊपर जाएगा. क्यों? हाँ हमने अभी तक बोला नहीं. If I say M2 is greater than M1, only in this case you have M2 accelerating downwards and M1 accelerating upwards. Correct? Good. So, how do you start making equations here? Of course, free body diagram लगने वाला है. Just tell me. ठीक है. नहीं. हाँ. तो सबसे पहले आपको M1 का FBD देखना है. You have to see free body diagram of M1. T1 ऊपर, राइट. M1G नीचे और एक्सेलेरेशन है ऊपर की तरफ. तो इसलिए since the mass M1 is smaller than mass M2, that means mass M1 is going up with acceleration A. So upward force is more as compared to downward force. So T1 minus M1G equal to M1A. एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? मुझे इसमें इंटरेस्ट है. M1G plus M2G by M1 plus M2. T1 minus T2 equal to M1 plus डायरेक्ट इक्वेशन चाहिए. जैसे लास्ट केस में हमने F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 लिखा था. रॉन्ग, गलत बोला था आपने. रिमेंबर मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट. रिमेंबर कैपिटल F अप्लाइड फोर्स अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसा लिखा था हमने. राइट. यहाँ पे नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? ग्रेविटी है, बट आई वांट टू नो what will be A. नहीं, प्लस नहीं, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. हाँ, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. व्हाट इज नेट फोर्स? M2G माइनस M1G. क्यों M1G बताता हूं मैं. I'll tell you. देखो, the thing is, that's why I tell you that you need to think. ये फ्री बॉडी डायग्राम का काम क्या है? I'll tell you. देखो, यहां से एक मिला और एक दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे आप M2 के लिए. सो इस केस में भी, in this case also you will have M2G downwards, you will have tension upwards and acceleration, overall acceleration downwards basically. ये M2 की बात कर रहा हूं मैं. This is M2. T1 M2G और A. फिर आप क्या लिखोगे? What will you will write in this case is
M2G minus T1 equal to M2A, ऐसा करोगे, वेरी गुड, राइट। देन व्हाट यू कैन डू इज, यहां से आपको T1 मिलेगा M1A प्लस G, ये तो पता ही था लिफ्ट का केस, जब ऊपर जाएगा तो A प्लस G, जब नीचे आएगा तो A माइनस G या G माइनस A। लिए केसेस, हमने केसेस लिए हैं M2G माइनस A इक्वल टू T1, राइट। ऊपर गया तो A प्लस G, मैं इसलिए क्या याद रखता हूँ, ऊपर गया तो G प्लस A, नीचे आया तो G माइनस A, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा उस केस में। 1 एंड 2 है ना, दोनों का एक एक साइड सेम है, तो इक्वेट करोगे आप इसको, तो आपको क्या मिलेगा, M1A प्लस G M2G माइनस A, फिर सॉल्व करेंगे, मतलब बेसिकली सॉल्व करेंगे, राइट राइट। आई टेल यू ट्रिक, ये सॉल्व करने के बाद आपको यही मिलने वाला है, नेट फोर्स M2 माइनस M1, M2 ज्यादा था, तो ज्यादा था इसलिए तो वो नीचे पुल कर रहा था पूरे सिस्टम को, और M1 ऊपर जा रहा था, राइट। तो हमेशा नेट फोर्स में क्या आएगा, M2G, फोर्स कहां से आएगा, ग्रेविटी से आएगा ना, तो M2G माइनस M1G अपॉन टोटल मास, करेक्ट। दिस इज नेट फोर्स अपॉन M1 प्लस M2, so this is the equation that you should get for acceleration, right, correct, agree। अब T1 easily मिल जाएगा, our task is to find out T1 and T2, how do you find out T1, ये M1 है into A plus G है ना, A plus G है, करेक्ट। तो A क्या है आपके पास, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 into G प्लस G, करेक्ट, एग्री। तो T1 विल बी इक्वल टू G कॉमन, तो M1 M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 1 G कॉमन, this will simplify to what, M1 M2 माइनस M1 प्लस M1 प्लस M2, है ना, मतलब M1 M1 कैंसल आउट हो रहा है और M2 M2 ऐड हो रहा है, तो 2 टाइम्स आएगा, मतलब फाइनली आपको मिलेगा 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2G, राइट राइट। तो if you can find out acceleration, that is net force upon mass, total mass, you can find out tension from one of these equation, और ये भी, this is joke, system is going up, G plus A, M कौन सा सिस्टम जा रहा है ऊपर, M1 जा रहा है, तो M1 into G plus A, या तो फिर M2 नीचे आ रहा है, तो T1 is also equal to M2G minus A, तो सिर्फ A के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G मिलेगा आपको टेंशन T1, करेक्ट, क्लियर। व्हाट अबाउट टेंशन T2, टेंशन T2 क्या है, ये टेंशन T2 है ऊपर की तरफ, राइट। लुकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ पुली, T1 यहाँ पे भी डाउनवर्ड्स, या हाँ, तो T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1, मतलब सिर्फ T2 विल बी 4M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, राइट। So this is how you can solve, okay, right। T2 का बताता हूं, वेरी गुड, ओके। तो T2 का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, नहीं ये अच्छा वाला है, खराब हो जाएगा, लुक हियर, ये रिजिड सपोर्ट पे लगाया है, ये मास M2 है और ये मास M1 है, ये स्ट्रिंग सेम है, राइट। तो मैं जब नीचे से देखूंगा तो टेंशन कहां दिखेगा मुझे, ऊपर। जब मैं पुली से देखूंगा तो टेंशन कहां दिखेगा मुझे, डाउनवर्ड्स। तो ये T1
और दूसरे मास के लिए भी T1, और पुली से देख रहा हूँ ना मैं, तो पुली से ऊपर की जो रस्सी है उसके लिए टेंशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन अपवर्ड। तो T2 कहाँ है और 2 T1 कहाँ है ना, तो T2 इक्वल टू T1 प्लस T1 मतलब 2 T1, T1 निकाल के रखा है आपने, राइट। तो 2 इंटू 2 मतलब 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। क्लियर, गुड, राइट। तो ये तो इजी केस था, जस्ट 2 masses. Now I'll increase masses, and that is what you are supposed to do now. Now if I increase masses, I want you to tell me what will be the equations. यहाँ पे एक स्ट्रिंग, एक पुली, यहाँ पे एक ब्लॉक, फिर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक ब्लॉक, and then I'll go ahead and put one more block. I'll give it some names. Let us say this is M1, this is M2, this is M3. Of course, under the condition that M2 plus M3 is greater than M1, so that overall system is accelerating downwards for M2 and M3, and M1 is going upwards with A. I want you to find out equations of tension. I don't know how many tensions are involved here. You have to check. You have to tell me. जितने भी इक्वेशन हमने लास्ट पेज पे डिराइव किए थे, क्या क्या किया था देख लो। एक नेट एक्सेलरेशन है ना, एक टेंशन T1, एक टेंशन T2। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है ए नेट मतलब एक्सेलरेशन T1, T2 एंड T3 आपको फाइंड करना है फॉर दिस केस। नाउ सी आई हैव डिराइव्ड अ टेक्निक, तो मैं इसलिए इसको बोलता हूँ एंड पॉइंट मेथड। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जहां पे कम से कम कॉम्प्लिकेशन होंगे, कहाँ पे कम से कम कॉम्प्लिकेशन है, तो वहां पे उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, राइट। ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम आ गया, राइट। ऑल ऑफ यू क्या इक्वेशन आएगा, T1 minus equal to M1 equal करेक्ट, राइट। फिर आपने डेफिनेटली ऐसा किया होगा, फिर आपने डेफिनेटली इसको लिखा होगा G प्लस ए आप बोलोगे ए क्या है, M2 प्लस M3 माइनस M1 G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, है ना। फिर G कॉमन निकालोगे और सॉल्व करोगे, फिर M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। मैं तो बोलने में भी थक गया ये सब जी। फिर आप M1 कैंसल करोगे, बराबर, ऊपर आया 2M2 प्लस 2M3, 2 भी कॉमन निकाल लिया, मतलब 2 तो आने वाला है, आप दोनों में से किसी ने 2 बोला ही नहीं। 2M1 M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 जी। तो ये आएगा टेंशन T1, राइट। तो ये आने वाला है टेंशन T1। मुझे वो A कैसे निकाला वो ए कैसे निकाला, ऐसा समझो हम एक ग्रोसरी स्टोर में गए, हमने बोला कि 1 किलोग्राम शक्कर दे दो, राइट। डिजिटल बैलेंस नहीं है, वेट बैलेंस है। क्या करते हैं, 1 kg हियर एंड देन वी कीप ऑन पुटिंग शुगर, राइट, करेक्ट। मान लेते हैं 2 kg मांगा, तो एक में 2 kg का बैलेंस है, एक में मैं शक्कर भरते जा रहा हूँ, 1 kg हो गया, राइट। 1 बैलेंस होगा क्या, वो एक में 1 kg में 2 kg बैलेंस होगा क्या, नहीं। तो क्या होगा, क्या होगा, जहां पे ज्यादा मास है वो नीचे जाएगा, बराबर, नीचे जाएगा मतलब मोशन है और एक्सेलरेटेड मोशन है, बराबर। यहां तक क्लियर, राइट। एक्सेलरेशन क्यों होता है, फोर्स की वजह से होता है। यहाँ पे फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मास पे, लेकिन मास एक में 2 है, एक में 1 है, तो क्या किया आपने, 2 माइनस 1, है ना। नेट फोर्स निकालने के लिए क्या किया आपने,
m2g माइनस m1g, है ना, ये आपका नेट फोर्स है. व्हाट इज एक्सेलरेशन बाय द वे? फोर्स अपॉन मास, करेक्ट, राइट. नेट फोर्स क्या है आपका? m2 माइनस m1g अपॉन टोटल मास क्या है? हाँ तो वैसा निकालते हैं. यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? M2 प्लस m3 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, मिल गया एक्सेलरेशन, खत्म. Okay, so this is logical reasoning here. Yes, T2 निकाला क्या किसी ने? M3 2 M1 m1 G g divided by M1 plus M2. 2 m1 m3 g. m3 तो चाहिए. पहले M3 है, बाद में M1. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. 2 m1 m3 g अपॉन, हाँ क्यों T2 इजी है? क्यों T2 इजी है बताता हूँ आपको. इफ यू लुक एट मास m3, मास m3 के FBD में क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है? T2 और नीचे क्या है? m3g. और ओवरऑल क्या जा रहा है? ये नीचे. तो क्या लिखोगे? m3g माइनस T2 इज इक्वल टू m3a. तो T2 क्या आ गया? क्या आ गया? m3g प्लस a. हाँ करेक्ट है, माइनस ए, माइनस नीचे आ रहा है इसलिए माइनस ए, इतना ही है. दिस इज करेक्ट. जरूरत क्या थी आपको? मैंने बताया लिफ्ट का प्रॉब्लम याद है क्या आपको? लिफ्ट का प्रॉब्लम याद है? व्हेन अ बॉडी गोज अप g प्लस ए, व्हेन अ बॉडी कम्स डाउन, यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है? m3 नीचे आ रहा है ना, हम तो m3 की बात कर रहे हैं ना. हाँ तो फिर क्या जरूरत है ये सब इक्वेशन लिखने की? T2 इज m3g माइनस ए, खत्म. अब ए पता है? अभी अभी आपने बताया ए, बताओ तो ए. यू दर्शन बताओ तो ए क्या लिखा था अभी अभी? M2 plus M3 minus M1 into G upon M1 plus M2 plus M3. राइट. अब इसको सिंप्लीफाई करो. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा 2m1 m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसा मिलना चाहिए, राइट. T2 मिल गया, T1 मिल गया. व्हाट विल बी T3? T3, हाँ यहाँ डायग्राम देखो तो भी चलेगा. व्हाट इज T3 बाय द वे? 2 टाइम्स ऑफ T1, मतलब 4m1 इंटू m2 प्लस m3, क्योंकि T1 है हमारे पास, है ना. तो T3 इज जस्ट 2 टाइम्स ऑफ T1, राइट, करेक्ट. कैन यू सॉल्व इफ आई पुट वन मोर मास? नहीं. हाँ सर. हाँ तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है by yourself, because there is a trick to remember this all equations, and I am a bad teacher. मैं जल्दी नहीं बताता हूँ because I want you to work out. खुद करोगे तो समझेगा. क्या करना? जो भी बुक होगा आपके पास, XYZ पब्लिकेशन, चेक फॉर 4 बॉडी प्रॉब्लम, इसको 3 बॉडी प्रॉब्लम बोलते हैं बाय द वे, and you have to derive T1, T2, T3, T4, and then उसको आधे घंटे तक देखते रहो, and then you will realize that there is some pattern coming out, और वो आपका बनेगा ट्रिक. ओके, that is home assignment. You have to do it yourself. चलो, now let us move to motion on an inclined plane. तो पहले तो इंक्लाइंड प्लेन का एक ही केस लेता हूं मैं.
Okay, let me put a pulley over here. Excellent. And what we will do is, of course, pulley को support दिखाना पड़ेगा. Then we have a mass m1 over here. This is mass m1. ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. यहाँ पे दूसरा मास हैंग कर रहा है m2. डोंट स्पीक. A block, B block, angle theta, right? How do you solve such problems? प्रॉब्लम मतलब क्या सॉल्व करना है पहले तो पता होना चाहिए. एक्सेशन निकालना है, दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है. यही दो चीजें करनी है हमको. व्हाट डू यू डू इन सच केसेस? कहां से स्टार्ट करोगे इसको सॉल्व करना? हाँ, राइट, करेक्ट, करेक्ट, यू आर राइट. बट m1 इज एन इंक्लाइन प्लेन. तो इस केस में कंपोनेंट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे. कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स वर्ड यूज किया मतलब आपको कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे. फ्रिक्शन तो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है. अभी फिलहाल स्मूथ प्लेन है. तो ये ऐसा है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट m1 ओनली. वी आर टॉकिंग अबाउट m1 ओनली. ये आ गया आपका m1. यू नो, अगर ये एंगल थीटा है, and what else you know is you should know is that m1g matlab weight of the body is always vertically downwards. Normal reaction is always normal to the surface in contact. ऐसा कुछ, right? Always. Then this is m1g. Correct. ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा आता है हमारा, पता होगा, सॉल्व किया होगा. तो ये होगा आपका m1g cos थीटा. अगर ये m1g cos थीटा है तो यहां पे जो कंपोनेंट होगा वो आएगा m1g sin थीटा. एग्जैक्टली. इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन इज g sin थीटा. वो समझेगा आपको. तो अब इफ यू लुक एट m1, यहाँ पे दूसरे साइड पे एक स्ट्रिंग भी है. यू हैव अ स्ट्रिंग हियर, और स्ट्रिंग में क्या है? टेंशन. तो टेंशन T. करेक्ट, गुड. तो नाउ व्हाट यू विल डू इज, अब आप लोगे ब्लॉक m2. डिपेंड करता है. अब अगर m2 इज ग्रेटर देन m1 तो मोशन इज हियर. और हम पुली के केस में ऐसा ही लेते हैं नॉर्मली. तो m2g minus tension T will give me m2a, राइट? करेक्ट. तो पहला चीज तो ये मिल गया. अब वैसे भी मैंने लॉजिकली बताया आपको, ये बार बार इक्वेशन नहीं लिखना. नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है तो क्या लिखना चाहिए? g minus a. करेक्ट है ना? यहां तक तो हो गया. व्हाट अबाउट a? मैंने ऑलरेडी बताया तुम्हें. व्हाट अबाउट a? व्हाट अबाउट a? I have already told you. अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे अभी पहले एक्सेशन पे ले जाना पड़ेगा. व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? एफ नेट अपॉन टोटल मास. व्हाट इज एफ नेट हियर? दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग. दैट, मुझे एक बात बताओ, इंक्लाइन प्लेन थोड़ा तो यहाँ दे गया. इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट नीचे कब आएगा? कौन से कंपोनेंट की वजह से आएगा?
लिखा है यहाँ पे m1g sin थीटा, करेक्ट। दूसरे एंड से क्या फोर्स है, m2g, है ना, करेक्ट। दूसरे एंड से m2g है ना, तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, करेक्ट। व्हाट इज नेट फोर्स, m2g माइनस m1g sin थीटा, बराबर ना। तो व्हाट डू यू राइट इज दिस, m2g माइनस m1g तो पहले लिखा ही था तुमने पुली के केस में, यहाँ इंक्लाइन प्लेन आ गया तो सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा, g sin थीटा अपॉन टोटल मास इज m1 प्लस m2, तो ये क्या आएगा आपका m2 माइनस m1 sin थीटा g अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज एक्सेलरेशन, वही है, इट इज नथिंग डिफरेंट। कैसे नथिंग डिफरेंट, यू हैव टू थिंक, इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो, इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो थीटा की वैल्यू क्या आती, थीटा की वैल्यू क्या आती, 90. 90 डिग्री। Sin 91 होगा. ओके, सो लेट्स नॉट मिक्स अप टू केसेस, फिर कंफ्यूजन होगा। देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, द आइडिया इज प्रीटी सिंपल। जब एक पुली का एग्जांपल आप लेते हो, ये एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स इज m2g माइनस m1g, नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, m2g माइनस m1g, करेक्ट, अपॉन m1 प्लस m2, मतलब m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा है आया है, राइट, एक्सेलरेशन, वेरी गुड। नाउ व्हेन यू आर ऑन इंक्लाइन प्लेन, ऊपर या नीचे जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, g sin थीटा। नेट फोर्स क्या हो गया, m2g माइनस m1g sin थीटा अपॉन टोटल मास, मिल गया एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर, राइट। इसका मतलब इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे लेके जाने के लिए कॉस रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, इसका मतलब इट शुड नेवर अपीयर इन इक्वेशन, क्लियर। ए मिल गया। अब ये ए अगर आप टेंशन टी के इक्वेशन में डालते हो तो यू गेट टेंशन, इक्वेशन फॉर टेंशन, इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा, दैट्स इट। और ये भी उसी टाइप का है, तो m1 m2 1 प्लस साइन थीटा इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 ऐसा आएगा। वाई, मैंने इसे सब्स्टिट्यूट किया, जस्ट सब्स्टिट्यूशन। जब a में मैं m1 प्लस m2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, नीचे नीचे आएगा ना, a में m2 प्लस m1 साइन थीटा g अपॉन m1 प्लस m2 है, पहला g है, g कॉमन निकाल रहा हूं, वो 1 माइनस हो रहा है, m2 प्लस m1 डिनोमिनेटर में है, उसको यहाँ पे लाए, करेक्ट, उसको सॉल्व करना है एंड देन यू विल गेट रिक्वायर्ड आंसर, सॉल्व करना है, दैट्स इट। और मे बी सॉल्व कर ही देते हैं, हो सकता है इक्वेशन मैंने गलत लिखा हो, मिसप्रिंट हुआ हो सकता है, पॉसिबल है, तो हम लोग कर लेते हैं। सो द आइडिया इज टू फाइंड आउट टेंशन, okay, then I don't want this equation for the time being, I don't want this over here, I'll keep it over here, this is what we have done by logic, and now let me just put everything in proper order, oops, right, up, okay, तो T is m, which m, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, which m, टेंशन के लिए इक्वेशन में क्या लिखा था, m2 माइनस ए, राइट, तो T इज इक्वल टू m2, g माइनस ए इज m2 माइनस m1 साइन थीटा,
तो थोड़ा आलसी हूं तो काम में आना चाहिए 1, क्योंकि मैं सीधा g को भेज रहा हूं बाहर, कॉमन, करेक्ट। अपॉन क्या था, m1 प्लस m2, तो t क्या आएगा, m2 m1 प्लस m2 माइनस m2 प्लस माइनस माइनस प्लस m1 साइन थीटा, करेक्ट। तो उसमें क्या कैंसिल होगा, m2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, m1 प्लस m1 साइन थीटा, और m1 कॉमन निकल जाए तो m1 1 प्लस साइन थीटा। तो ओवरऑल आ गया क्या ये, m1 m2 1 प्लस साइन थीटा g अपॉन m1 प्लस m2, तो ये तो लिखा था मैंने, राइट। इंक्रीज योर प्रोसेसिंग स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रैक्शन मतलब p अपॉन q फॉर्म, ये सब फास्ट फास्ट करते आना चाहिए आपको। सो दिस इज हाउ यू गेट इट। सर वो थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू, नहीं आपने कहा था कि कूलिंग में तो थीटा की वैल्यू क्या है? तुम्हें वही तो सोचना है, वही तो सोचना है, लॉजिकली सोचो। पहले पुली था, एक मास था, एक यहाँ था, राइट, करेक्ट। ओके, ओरिएंटेशन देखो, ओरिएंटेशन, यू हैव टू लुक एट ओरिएंटेशन, हाउ इट इज ओरिएंटेड, मास m1, थीटा जीरो करूंगा, थीटा तो जी साइन 90 सर थीटा का 0 किया तो साइन 0 हो जाएगा, साइन जीरो होगा, साइन 0 साइन जीरो होगा। कंपोनेंट्स के साथ क्या हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था टू मूव बॉडी अप एंड डाउन, m1 जी साइन थीटा। कंपोनेंट्स के साथ क्या हो रहा है वो देखो ना तुम, यू हैव टू लुक एट कंपोनेंट्स। ये जो m1 g साइन थीटा है, व्हेन यू एक्चुअली टेक ऑफ दिस, तो तुम ये नहीं देख रहे हो कि पुली भी तो वर्टिकली ऊपर आ रहा है ना, तुम ये भूल गए। पुली कहाँ कनेक्टेड है, इंक्लाइन प्लेन के एंड पे। तुम कहाँ ध्यान दे रहे हो, तुम सिर्फ दे रहे हो ध्यान ये साइन थीटा फैक्टर पे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जीरो, तो तुम बोलोगे साइन जीरो, जीरो खत्म। अरे बट पुली भी तो, पुली का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा क्या, इसलिए मैंने बोला डोंट गेट इनटू कॉम्प्लिकेशंस, बिकॉज पुली कहाँ कनेक्ट किया है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो दैट्स व्हाई डोंट गो इनटू दोस थिंग्स। तुमको सिर्फ अभी ये पुली का और ये इंक्लाइन प्लेन का केस ही अलग कर दो, अदरवाइज फिर मुझे पूरा बेसिक्स, पुली का बेसिक्स बताना पड़ेगा फिर, राइट। अब एक और ऐसा, that now we have two inclined planes with different angles of inclination। एक को ऐसा करता हूं, दूसरे को ऐसा रख देते हैं, and then I will place a pulley over here, and we have a string coming from here attached to one mass and a string coming from here attached to another mass। And those who are online, please start solving this। थोड़ा आज का केस डिफिकल्ट जाएगा, बट इट्स ओके। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व, आई वुड वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड दिस टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ये अल्फा, ये बीटा, मेरे लिए ओरल केस है, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस। मास मान लो m2 ग्रेटर देन m1 बोल देते हैं हम लोग। सॉल्व करो, आई वांट एक्सेलरेशन इक्वेशन, आई वांट टेंशन T का इक्वेशन हियर, और ये हम एग्जांपल्स ही सॉल्व कर रहे हैं, ये एग्जांपल्स में आता है आपको। एंड द आइडिया हियर इज, ये इजी केस है, यहाँ पे ध्यान दो, ये इजी केस है,
ये हो गया आपका inclined plane for M2. As you said, this component is M2G sin beta. बराबर क्लियर. और M1 के लिए ये आएगा M1G sin alpha. Net force in this case will be M2G sin beta minus M1G sin alpha upon M1 plus नहीं नेट फोर्स, ये नेट फोर्स आ गया. करेक्ट. तो acceleration will be F net upon total mass and F net is M2 sin beta minus M1 sin alpha into G upon M1 plus M2. Correct? Right. Clear? हाँ, तो I want your attention here. Half truth. Why half truth? Does the net force will only depend on masses M2 and M1, not on alpha and beta? नहीं 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 नहीं. नेट फोर्स क्या बोला आपने? आपने बोला ना M2G sin beta माइनस M1 sin अल्फा इंटू जी. तो यहाँ पे ये नेट फोर्स सिर्फ M1 M2 पे डिपेंड करेगा, अल्फा बीटा पे नहीं डिपेंड करेगा. मतलब साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ 10 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री. ऐसा होता है क्या? होता है क्या? हाँ, एग्जैक्टली. तो जब हम लोग बोल रहे हैं ना कि ओवरऑल एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड्स है, तो हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि M2 साइन बीटा इज ग्रेटर देन M1 साइन अल्फा. तो ये कंडीशन के अंडर हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे सिर्फ M2 ग्रेटर देन M1 बोल के नहीं चलने वाला, राइट. तो दैट वाज इंपॉर्टेंट थिंग. ये हो गया एक्सेलरेशन. टेंशन. ये तो इक्वेशन देख के, ऐसे क्वेश्चन देख के टेंशन आने लगा होगा आपको. How do you find out tension? Easy है. It's quite simple. Yes. Yes. Look at this particular block M2. Solve करो. कैसे आएगा ये? इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे? M2G sin beta माइनस टेंशन T, क्योंकि नीचे आ रहा है सिस्टम, इज इक्वल टू M2A. तो T will be equal to M2G sin beta minus A. Do you observe a pattern? जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था, मैंने क्या हुआ था आपको, जो मास नीचे आ रहा है तो क्या लिखोगे? M2G माइनस A, बराबर ना. तो यहाँ पे सिर्फ G sin बीटा माइनस A, सिर्फ ये sin बीटा एक्स्ट्रा फैक्टर आया ना यहाँ पे. हाँ, तो फिर सॉल्व क्यों करना होता है बार बार? ये लॉजिकली चलते चलो. अब if a object is coming down, be it inclined plane, be it vertical motion, if an object is coming down, you always write mass into G minus A. अगर inclined plane पे है तो G sin beta minus A, खत्म. अभी A आपको पता है, सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे and you will get tension, right. तो सॉल्व करने के बाद you should get T as M1 M2. सो पूरा सॉल्व करने के बाद पूरा पूरा ओके, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2. तो यू विल गेट दिस इक्वेशन फॉर टेंशन. पूरा सॉल्व करने के बाद, राइट.
Okay then, we are done with theory part. बाकी है सब JEE का. स्प्रिंग और बाकी क्वेश्चंस अगर आ गए तो मैं ले लूंगा, अदरवाइज इट इज नॉट फॉर नीट. So what we should do now is we should start solving some numericals. Yeah. So question number 1, which was asked in 2009, an explosion blows a rock into 3 parts. 2 parts go off at right angle to each other. These two are 1 kilogram. First part moving with velocity 12 meter per second and 2 kilogram moving with 8 meter per second. If the third part flies off with a velocity of 4 meter per second, its mass would be. करो करो हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम सॉल्व करो. Okay, so how are you supposed to solve this question? 2 से 3 मेथड है. I will tell you one which is the simplest. Think of the question in terms of vectors. क्या बोला है, अभी आपने दिवाली पे एक बॉम्ब लगा दिया, उसके 3 टुकड़े हो गए, है ना. तो उसके 3 पीसेस हो गए. एक पीस गया यहाँ पे, दूसरा गया उसको परपेंडिकुलर, बराबर. थर्ड जहां चाहे वहां ले लो, जहां आपकी इच्छा हो वहां ले लो, बट इट इज गोइंग टू बी डायगोनल. यहाँ ले सकते हो, चलो जाओ. करेक्ट, राइट. तो लेट मी से दैट दिस इज द फर्स्ट पीस. कितना मास बोला है, 1 kg. कितना वेलोसिटी बोला है, 12 मीटर पर सेकेंड. ये दूसरा पीस है, कितना उसका मास है, 2 kg, और उसका स्पीड कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड. ये पीस 1, ये पीस 2 और ये पीस 3 जो होगा, पीस 3 स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट मास m3. Where people normally go wrong is law of conservation of momentum लगा दिया without thinking in terms of vectors. क्यों? क्योंकि क्या बोलोगे, initial momentum equal to final momentum, right? मतलब what you will write is 0 equal to p1 plus p2 plus p3, ऐसा ही लिखोगे, right? फिर आप बोलोगे कि p3 is equal to minus of p1 plus p2. Then you will say m3 v3 is equal to minus m1 v1 plus m2 v2, और ये v3 को भी यहाँ से उठा के डिवाइड कर दिया, राइट. दिस इज नॉर्मली व्हाट यू डू. करेक्ट? नॉट करेक्ट. व्हाई नॉट करेक्ट? 2 पीसेस तक ठीक है, तीसरे पीस में प्रॉब्लम क्या है कि थर्ड पीस, इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट 2, है ना. करेक्ट है ना. तो कैन आई राइट डाउन लाइक दिस, p3 is equal to under root of p1 square plus p2 square plus 2 p1 p2 cos of 90 degree. what is cos of 90 degree? 0. और वैसे भी मैंने बताया डायगोनल मतलब यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर, है ना. आई होप सबको समझ में आ रहा है. जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये जो सेकेंड वेक्टर है इसको मैं यहां रख सकता हूं. आई कैन पुट p2 ओवर हियर. मैं वापस से बता देता हूं, जिनको नहीं समझा उनके लिए मैं वापस बता रहा हूं. आई जस्ट हैव टू डू वन थिंग एंड दैट इज अ प्रीटी सिंपल थिंग. मुझे सिर्फ करना ये है, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा
That's it. And look at this thing now. अब ध्यान दो यहाँ पे, ये P3 हो गया, this is P3, थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम। आपको पता है वेक्टर्स को आप जहां चाहो वहां रख सकते हो, पता है आपको। तो ये P2 को मैं यहाँ पे मूव करके आ गया, तो P3 क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज बन गया तो क्या लिखोगे, P3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। व्हाट इज P1 P2, M1 V1 प्लस M2 V2 का स्क्वायर, और P3 क्या है, M3 V3। तो आपको करना ये था दैट M3 इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, M1 V1 दिया है ना, 1 into 12 is 12 स्क्वायर प्लस 8 into 2 is 16 स्क्वायर का अंडर रूट, और डिवाइडेड बाय V3 की वैल्यू कितने दी हुई है हमको, 4। व्हाट इज 12 स्क्वायर, 144। व्हाट इज 16 स्क्वायर, 256। व्हाट इज 144 प्लस 256, फटाफट 400 ना, हाँ राइट। व्हाट इज रूट ऑफ 400, सर स्क्वायर रूट अरे ठीक है बट एमसी चाहिए ना। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 400, 20। व्हाट इज 20 by 4, 5 kg। है क्या आंसर, 5 है आंसर 5। तो इसलिए मैंने वेक्टर्स पे बहुत टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप वेक्टर्स से सॉल्व करते हो। कैसे समझा, दो कंपोनेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब तीसरा कहीं पे भी जाए वो इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। आया समझ में। तो इफ यू वांट टू पुट अ नोट देयर, डू राइट इट नाउ, बाद में कंफ्यूजन होगा आपको। इज इट क्लियर कशिश, इज इट क्लियर, गुड। That's good. Next and last for the day, because inverter is about to die. A rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 degree, gets reflected without loss of speed. The value of impulse imparted by the wall will be. ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा के दिया है। Do you remember? What is change in momentum, and change in momentum is impulse. हमारा केस सिर्फ, if I am not wrong, ऐसा एक केस था हमारा, है ना। फिर मैंने बोला था इसको अब वर्टिकल ले लो, and I told you which component will change, and you told me answer will remain same. Do you remember what was delta P in that case? मैंने करवा के दिया है। Someone is writing down. Yes. तो मैंने करवा के दिया था, तो मुझे चाहिए impulse is delta P. Impulse is change in momentum. So I want to know कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे, या ये इक्वेशन क्या बना था। इफ यू रिमेम्बर 2mv cos ऑफ थीटा, ऐसा आता है वो, राइट। cos ऑफ थीटा आता है वहां पे। इफ यू रिमेम्बर व्हाट इज थीटा, 60। व्हाट इज cos 60, हाफ। तो क्या आएगा, mv। तो क्या आया, mv, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर वो वाला क्वेश्चन याद होगा तो ये ओरली होता है अब, करेक्ट। So such kind of questions are really important. Okay. All right. So I think we should stop, क्योंकि अगर इन्वर्टर बंद हो गया तो रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा जाएगा काम से। Otherwise, it will be a big loss for me. So we'll continue. I will message you those who are online. I'll tell you extra class का timing.